نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے سب سے عظیم محبوب اور شان والے حبیب سے منسوب محفل کی مجلس اور نشست نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ حبیب کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے. قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، اور سب سے بڑی اور پہلی بات کہہ دوں تاکہ آپ پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ بیٹھیں. اور سچ میں دکن کی زمین اور سرزمین پر جو بڑی رات کا تصور ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ 12 گھنٹہ سے 14 گھنٹہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 12 گھنٹہ میں کئی زیادہ برکت آ جاتی ہے. یہ ہے تو برکت کہتے ہیں خیر الکثیر الجاری، یعنی اتنی بھلائی جو بڑھتی چلی جائے. اس اعتبار سے یہ بڑی رات ہے. اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی رات کو ہم سب کو نصیب کیا ہے. ہم سب کی تمام آرزو اور تمناؤں کو قبول فرمائے. یہ تو ہوئی آپ کے ذہن کے اعتبار سے کہ آپ ذرا قریب ہو جائیں، اور دوسری بات کہ آپ خوش ہو کر سنیں، اور جو بھی غم ہے تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیں، کیونکہ ان کا نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہ بات حبیب کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، انشاءاللہ جو واقعی غم ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں انشاءاللہ. آج بڑی رات ہے اور معراج کی رات ہے. آپ تاریخ وغیرہ کے حوالے نہ جائیں. ظاہر ہے کوئی بھی تاریخ ہو، معراج کی تاریخ ہوگی. افسوس ہے جو صرف تاریخ کی بات کرتے ہیں وہ اب تک کسی تاریخ میں کرتے ہی نہیں ہیں. آپ ذرا دیکھیں جو کہتے ہیں اس تاریخ کو اس تاریخ کو، تو کوئی تاریخ ہی نہیں ملی انہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بزرگان دین کے کرم سے ہمیں یہ 27ویں شب مل گئی ہے. الحمدللہ مل گئی. این سعادت بزور بازو نس تان بخشت خدائے بخشندہ. یہ آپ کو اپنی طاقت سے نہیں ملی ہے، خدا کی بخشش سے ملی ہے. یہ سعادت بہت بڑی بات ہے. کوئی تحقیق میں رہ گیا، کوئی تاریخ کی تگ و دو میں رہ گیا، اور آپ تصدیق میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بات نہیں، آپ کے ایمان کے عروج کی بات ہے. آپ جتنا نبی کا ذکر کریں گے گویا اپنے ایمان کا ذکر کر رہے ہیں. کلیئر بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سب کا ایمان ہے نا. اگر صرف آپ لا الہ الا اللہ 1 سال پڑھیں اور محمد رسول اللہ دوسرے سال پڑھیں، آپ مومن ہیں؟ نہیں. محمد رسول اللہ تکمیل ایمان ہے، تکمیل توحید ہے. آپ کی توحید قبول نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے. اس لیے نبی کی بات جب آئے تو الحمدللہ خوش ہو جا کر کے اپنے ایمان کی بات ہو رہی ہے. پورے کا خلاصہ اب ذرا سنیے کہ یہ معراج کا واقعہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. پھر میں لامکاں میں ظاہر ہے لامکاں میں جانے کے بعد تو ویسی بات ہونا چاہیے، اس لیے میں آخر میں تھوڑی لامکانی بات کروں گا. ابھی سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ جو شب معراج سے جتنی بھی ریلیٹڈ باتیں ہیں
سب محیر العقول ہیں، یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والی بات ہے، اور جو چیز عقل کو حیران کر دیتی ہے اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقل میں آ جائے اسے معجزہ نہیں کہتے، جو عقلوں کو حیران کر دے اسے معجزہ کہتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں ڈال دیں، وہ برتن بھرے گا؟ بولیے، نہیں بھرے گا۔ دیکھو عقلوں کو حیران کر دینے والی بات، لیکن نبی خالی برتن میں خالی 5 انگلی ڈال دیں تو چشمے بہہ جائیں۔ اب ذرا سمجھیے، معجزات کا ایک پیمانہ دے رہا ہوں۔ اسی طرح ابھی اب گرمی کا اگر زمانہ ہوتا تو اعلان ہو جاتا کہ ذرا الگ الگ ہو کر بیٹھیں، پسینے کا مسئلہ آتا۔ آپ کے پسینے میں بدبو ہے، بو نہیں بدبو ہے، خوشبو نہیں، بو صرف نہیں بول سکتے کیونکہ بو خوش بھی ہوتی ہے نہیں۔ ہمارے آپ کے پسینے میں بدبو ہے، لیکن مصطفیٰ کا جسم پاک وہ ہے کہ کمال ہے، عطر سے زیادہ معطر ہے، عطر سے بھی زیادہ، مشک سے زیادہ۔ یہ سب بات اوتھینٹک ہے، حدیث میں ہے، بالکل طے ہے۔ تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ جو عقلوں میں نہیں دل میں آنے والی چیز ہے، آپ دل میں اس نبی کو لائیں، اور جب دل سے آپ اس نبی کو، دل میں اس نبی کو سنیں گے اور لائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ تنکیر، انکار اور تردید کا نظریہ نہیں بنے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، آپ میں بولتا رہوں اور آپ کو کوئی تعجب والی بات نہ لگے تو آپ سنتے رہیں گے، لیکن کوئی تعجب والی بات لگے تو آپ سبحان اللہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بات پر سبحان اللہ نہیں بولتے، جو آپ کو تعجب والی بات ہو اس میں آپ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے سفر مصطفیٰ کو سبحان کے ذریعے شروع کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، تعجب کی بات ہے اس لیے آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں، ورنہ میں تو جبہ بہت پہلے سے پہنے ہوا، اگر جبہ دیکھ کے سبحان اللہ بولنا ہوتا تو آپ بولتے رہنے تھا، لیکن نہیں، بات جب آپ کو تعجب والی لگ رہی ہے تب بولتے ہیں سبحان اللہ۔ بس اسی تمثیل سے، بلا تمثیل سمجھیے کہ رب العالمین نے سفر معراج کو سبحان سے شروع کیا، گویا کتنا تعجب خیز سفر ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سبحان سبحان الذی اسری بعبدہ۔ واہ، ایک بات، اور اسی میں دیکھیے آپ، پاک ہے وہ ذات۔ سوال یہ ہے کہ پاکی کا جو کانسیپٹ ہے کس چیز سے پاک ہے؟ پاک تو ہے ہی، یہ بات تو سفر معراج کی ہو رہی ہے، تو کیا سفر معراج سے پاک ہے؟ نہیں، سفر معراج سے ریلیٹڈ اعتراضات سے پاک ہے۔ سفر معراج سے پاک نہیں، سفر معراج سے ریلیٹڈ اعتراضات سے پاک ہے، تکذیب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، جو دین پر اعتراض کریں گے ان سب سے پاک ہے۔ اور کیا اعتراض نے ابو جہل، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے پاک ہے وہ ذات۔ پکتے رہو آپ ان باتوں کو سمجھیے، جب آپ ریفریش ہو جائیں گے نا تو فریش موڈ میں نبی کا آپ ذکر لے کر جائیں گے، آپ قدم رکھیں گے گھر میں، اور انشاءاللہ نور محمدی، رحمت روح محمدی آپ کے گھر میں جلوہ گر ہو کر برکتیں آئیں گے انشاءاللہ۔ سمجھیے، آج جو سب سے بڑی بات، پہلے 10 منٹ سنیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لے گیا، کہاں تھے آپ؟ دار ام ہانی میں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک مسجد حرام سے مسجد اقصی کہتا ہے، ذرا سمجھیے نسبت۔ دل میں، گھر میں ایک دن آرام کرے دار ام ہانی کے گھر میں، اللہ نے اس گھر کو ذکر نہیں کیا، آرام اس گھر میں کرے، لیکن فرمایا مسجد حرام سے میں لے گیا، اس گھر کو مسجد حرام والی عظمت ہے، مسجد حرام والی عظمت ہے، دار ام ہانی میں ہے، سب جانتے ہیں کہ یہاں آرام کر رہے ہیں، آئے یہاں آرام کیے پھر لے گئے، لیکن فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہونا چاہیے من دار ام ہانی۔
इलल मस्जिद अल अक्सा, दारे उम्मे हानी से मस्जिद अक्सा। लेकिन नहीं, देखिए आप निस्बत रखिए, नबी अगर आप दिल में है ना, घर में है ना, आपके पास है ना, तो खुदा का वो अजीम मकाम है आपका। आइए आप अपने दिल में नबी को रखें तो अरे नबी जिस घर में हो पूरी मस्जिद का मकाम मिल गया है। आप समझिए इस बात को, एक रकात पढ़े तो 1 लाख का सवाब मिलता वहां। समझ रहे हैं ना? हाँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसे ही बाकरामत रखे। समझिए आप, खुश हुआ कीजिए यार, हाँ खुश हुआ कीजिए। उसके बाद देखिए दारे उम्मेहानी, ठीक है, रुकने यमानी है, हज को गए हैं तो अल्लाह ताला आपको बार बार नसीब करे। जो नहीं गए हैं एक बार जरूर जाएं, अल्लाह ताला आपको हम सबको बार बार नसीब फरमाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। रुकने यमानी के 100 कदम के आएंगे नसीब में तो वो पिलर नजर आएगा जिसमें बुराक बांधा था। सुभान अल्लाह, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, क्या बताएं। सुभान अल्लाह, बहुत तकलीफ। इसीलिए कहते हैं हम जरूर फिजिकली तौर पर दूर हैं लेकिन मुस्तफा से करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मौजूदा हुकूमत नजदीक होकर मुस्तफा से दूर है। तो वजह बताऊं आपको कि वो केरोसिन तेल छींटते हैं उस पिलर में। आप लोग अगर नहीं तहकीक किए होंगे तो वो पिलर जो है उसमें दारे उम्मेहानी के सामने वो पिलर है जिसमें बुराक बांधे थे मेराज की रात, उसमें केरोसिन तेल छींटते। कई के वास्ते कि ये जो आशिकाने रसूल है ना उस पिलर को चूमते हैं, तो अब जब चूमेंगे तो केरोसिन तेल उनको लगेगा। लेकिन खुदा की कसम मैंने उस हाल में भी चूमा है तो 7 दिन तक इत्र रहा है। सदियां गुजर गई है, आज तक खुशबू है। ये वक्ती तौर पर मिट्टी का तेल उसे बर्बाद करेगा, मिट्टी का तेल भी इत्र बन जाता है। आप चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, आप चाहिए अल्लाह पाक आपको वो नसीब करे। हाँ खैर, बांध दिया 2 रकात नमाज भी मस्जिद हराम से। अब चले, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सफर किए, किस पर सफर किए? बुराक पर। किसके साथ थे? कहीं पर भी जिक्र है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा पाक है वो जात कि मैं ले गया। जिब्राइल ले जा रहे हैं लेकिन खुदा कह रहा है मैं ले गया। अरे यहां पर तो कम से कम अकल पैदल कर दीजिए, बात अकल में आने वाली नहीं है, बात दिल में आने वाली है। बस ले जा रहे हैं जिब्राइल, आया है बुराक, सब जान रहे हैं आप, लेकिन मान नहीं रहे हैं। मान ये रहे हैं कि पाक है वो जात जो मुस्तफा को ले गए, पाक है वो जात जो अपने खास बंदे को ले गई, पाक है वो जिब्राइल जो बुराक पर मुस्तफा को ले गए। ये होना चाहिए ना, लेकिन सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने खास बंदे को ले गई। ले जाने वाले जिब्राइल हैं, लेकिन अल्लाह पाक कहना चाह रहा है मुसलमानों, इंसानों, मखलूकों, समझो, नजरिया समझो, वास्ता वो है, मकसद मैं हूं। वास्ता वो है, मकसद मैं हूं। मकसद समझो, मैं ले जा रहा हूं। इसलिए इनके जाने आने पर एतराज करना, जिस तरह जिब्राइल हकीकत की बुनियाद पर भी मैंने उन्हें फेमस नहीं किया और उनको उन्वान नहीं बनाया, समझ जाओ यहीं पर से कि यह सफर का उन्वान बड़ा अजीब है, सफर का उन्वान बड़ा ताज्जुब वाला है, सफर का उन्वान अकल में आने वाला उन्वान नहीं है। जा रहे हैं जिब्राइल के साथ, लेकिन खुदा कह रहा है मैं ले जा रहा हूं। खुदा कह रहा मैं लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, खुदा कह रहे मस्जिद अक्सा बाज़मत हो हमेशा, और आप हम सबको 2 रकात नमाज नसीब हो। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 जितने भी अंबिया किराम सब हैं, ठीक है, तशरीफ ले गए। पूरे अकायद, अमाल, किरदार, अखलाक सबका मुजस्समा है ये महफिल। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकर कुछ जाइए। जिनके ऊपर नमाज कर्ज है वो नमाज अदा कीजिए, क़ज़ाए उम्री। नहीं कर्ज है तो फिर 12 रकात आप पढ़िए, अल्लाह की इबादत कीजिए भाई। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। खूब विर्द कीजिए, आप कीजिए ही, सिर्फ एतराज मत कीजिए।
अमल कीजिए, आप जो भी करना है अमल कीजिए, एतराज मत कीजिए। ध्यान दीजिए, तशरीफ ले जा रहे बुराक की अजमत यह है कि ताहद निगाह उनका कदम, क्या बात है। अचानक जब चल रहे हैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत सुनिए, मरर तो बेमूसा, मैं लैलतुल उसरी अभी, जिस रात को मेरा इसरा हुआ, मुझे अल्लाह ने सैर कराया, उस रात जब मैं गुजर रहा था तो रास्ते में गुजरगाह में एक ऐसी जगह मिली जो जगह मूसा की कब्र थी। मेरा गुजर मूसा की कब्र के पास से हुआ। बड़ी खूबसूरती के साथ सुनिए। और वो मैं देख रहा हूं कि कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। इस लफ्ज पे गौर करें, मैं नमाज ही का तर्जमा कर रहा हूं। अहले तसव्वुफ में कुछ और होगा, अहले इश्क में कुछ और होगा। जैसे अभी कुछ अशार ऐसे थे जो एकदम सर के ऊपर वाले थे, इसलिए वहीं तक रहने दीजिए। खुदा बेकरार नहीं होता, बेकरार होना ये इंसान की सिफत है, खुदा शान वाला है, बेकरारी का उन्वान है। लेकिन तसव्वुफ का वो उन्वान एक अलग होता है। जरा जुमला मूसा की कब्र से गुजर हुआ, मैंने देखा कि वो सलात अदा कर रहे हैं। अब सलात का माना कई किए गए, अहले मोहब्बत करते तो दुरूद पढ़ रहे हैं क्योंकि सलात है। बहरहाल कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। पूछिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कैसे देखा आपने? मूसा तो कब्र के अंदर है और उम्मत तो ये नजरिया पेश कर रही है कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। आप समझिए इन बातों को। कोई ऐसा पहलू ही नहीं है मौजज़ा में जिसमें नुक्स का पहलू हो। कमाल की इंतहा ही नजर आएगी हर पहलू में मौजज़ा। कब्र के अंदर। दूसरी बात, निगाहे नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे अंबिया जिंदा हैं और अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं, यह अकीदा है। क्या यह अकीदा गलत है? सही मुस्लिम ने रिवायत गलत किया, नबी ने यह रिवायत गलत पेश की कि मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं कब्र में। सुभान। उसके बाद तशरीफ ले गए। जरा आप चाहे पहुंच गए बैतुल मुक़द्दस, ठीक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच बताऊं, ये आप जो बैठे हैं ना, दर हकीकत मुस्तफा ने आपको याद किया है इसलिए आप बैठे। वरना अगर गौर करें तो आज तो इनामाते इलाहिया का ओनली कॉन्सेप्ट था नबी के लिए, लेकिन नबी खुदा की बारगाह, मूसा जब जिद कर सकते हैं तो ये तो हबीब हैं। ये तो हबीब हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जब ओनली कहा था आप पर हो सलाम, तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं, मुझ पर नहीं, हम पर हो, हम पर हो। ये हम पर कौन है? ये हम वही है कि मुझ पर हो और मेरी गुनहगार उम्मत पर हो। आज अजीम मौके से आपको फरामोश नहीं किया और आप अभी तक तारीखी में हैं। नहीं, तारीख में ना जाइए, तारीख में चले जाएंगे आप। तस्दीक में आइए जहां जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके बैतुल मुक़द्दस, ठीक है। जो कुछ होना था, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंतजार, बुर्राक बांध दिया गया। सारे अंबिया किराम वहां हैं। इस लफ्ज पे गौर कीजिए, सारे अंबिया किराम वहां हैं। और सारे में कौन है? हजरत मूसा जो यहां अभी कब्र के अंदर है, जो नबी देखे। क्या ये मुहय्यरुल उक़ूल बात है कि नहीं? मुहय्यरुल उक़ूल बोले तो अकलों को हैरान कर रही है कि नहीं? बात नॉनसेंस इस तरह से आती नहीं। इसीलिए कहा यहीं पर अकल को पैदल कर दीजिए, यही ईमान है, यही ईमान है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और अल्लाह ताला सिकन का मोहताज नहीं है, वो तो सिकन को पैदा करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहां है। बैक वक्त जब नबी वहां पहुंचे तो सारे सफे अंबिया में मूसा भी खड़े हैं। सुभान। मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, सारे अंबिया। हजरत मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वाह वाह वाह, जो पिछली सल्तनत जितने भी सब करके गए थे सब पीछे खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार हुआ, इंतजार खत्म। मुसल्ला इमामत पर ऐसे ही नहीं कहते हो इमामुल अंबिया आप इनको।
वहां इमामत पर तशरीफ ले गए, सारे अंबिया किराम ने इमामत पढ़ी। कैसे पढ़ी, क्यों पढ़ी, उस पर नहीं, इतना एकदम ये सब कुरान के तसव्वुरात आपको पेश किए जा रहे हैं। इमामत की यहां तक की जो बात है, मस्जिद अक़सा तक की जो ये बात है, ध्यान दीजिएगा, ये जो उन्वान मेराज है ये कुरान पाक से है। इस पर डिस्कस भी करेंगे तो कुफ्र हो जाएगा, इनकार तो छोड़िए, डिस्कस भी करेंगे। आज मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कट्टों पर खड़े होकर बैठ करके जो मेराज की तहकीक करते हैं ना, जरा सोच करके, ये आपके और हमारे नबी की शान का मसला नहीं है, ये अल्लाह के हबीब की शान का मसला है। बढ़ाने वाला रब है, वो तस्दीकात पेश करता है और आप तरदीद पेश कर रहे हैं, वो तस्दीक पेश कर रहा है। समझिए आप, यहां तक मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये बताइए कौन सा उन्वान है? मेराज ही का तो उन्वान है ना। अब जब यहां तक ले, अब यहां तक ले गए, कितने दिन का सफर है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा? कितने दिन का सफर है? अब आप कैलकुलेट करके कल बता दीजिएगा, मगर रात के थोड़े से हिस्से का तो सफर नहीं है, ये बात क्लियर, ठीक है? थोड़े से हिस्से का नहीं है। और ये अभी फ्लाइट वगैरह कभी जमाना नहीं था, वो घोड़े का जमाना था। अगर तेज तर्रार घोड़े से भी जाएं आप तो कितने दिन लगेंगे आप जरा समझिए, महीने से तो ज्यादा लगेंगे। हाँ, उलमा ने 1.5 महीना लगे। और लैलन, थोड़े से हिस्से में रात के, ये भी अकल में आने वाली नहीं है। अकल को पैदल कीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। अब जरा सोचिए आप, यहां तक इनकार नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो एक सवाल तो कर सकते हैं, अल्लाह कहीं को ले गया, कहीं को ले गया, कुछ तो है। तो कहा अभी एंडिंग नहीं हुआ है, अभी तो ले जाना है। क्योंकि अगर आपने एंडिंग कर दिया, कुछ लोग कहते हैं ना आसमान का सफर इससे साबित है, उससे साबित है, इससे साबित है, नहीं, सफर को समझिए। जब उन्वान रब ने बांधा ले जाने का, तो एंडिंग आप करने वाले कौन होते हैं? एंडिंग आप करने वाले नहीं हो सकते। हां, ये कह सकते कि कुरान पाक से सराहतन मस्जिद अक़सा तक का सबूत है, लेकिन ये तो सफर का सबूत है, दिखाने का कहां सबूत है? अल्लाह ने आगे फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी निशानियां दिखाना चाहते हैं, हम अपनी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब जरा समझिए, अब निशानियां क्या क्या है, मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा, बस खुदा करे समझ जाएं आप। उस आज की रात को अल्लाह ताला अपने हबीब की खुद जात को दिखाना चाहता है। मेरे हबीब आप क्या हो ये आप खुद नहीं जानते, आज मैं आपको आपकी जात समझाऊंगा। और इसको एक आसान हदीस से समझाता हूं। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत इमाम हुसैन का अदब करते थे, जबकि बूढ़े सहाबी हैं, और हजरत इमाम हुसैन बच्चे। जब अदब करते तो इमाम हुसैन कहते आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसा मत कीजिए। तो हजरत अबू हुरैरा कहते शहजादे तुम अपनी अजमत को नहीं जानते। अब जरा समझिए, तो आज की रात जो है, मैं उस खूबसूरत जुमले कहना चाह रहा हूं, आयात कुबरा है ना कुरान पाक में, सूरह नज्म में कुबरा, बड़ी निशानी। ये बड़ी निशानी क्या है आप बताइए? जन्नत बड़ी निशानी है, दोज़ख बड़ी निशानी है। अब सारी निशानाते इलाहिया को आप बता दीजिए, अगर इन सबको बड़ी निशानी, तो मुस्तफा तो दुनिया ही में जन्नत बांट रहे हैं, खुसूसियत ही नहीं रहेगी मेराज की, फिर कोई अहमियत नहीं रहेगी मेराज की। लेकिन जब है खुसूसियत, है ये मोजज़ाती पहलू, तो मानना पड़ेगा कि बड़ी निशानी कुछ और है। वो बड़ी निशानी खुद ज़ाते रिसालत है, खुद ज़ाते रिसालत है। अभी मैं आपको बताऊं आगे चल करके, जब आप नमाज हो गई तो आप उसके बाद बुराक से ऊपर जाने का बस लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तशरीफ ले गए आसमान अव्वल। अब अभी खोला नहीं गया है दरवाजा, हजरत जिब्रील खटका मारते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन? तो हजरत जिब्रील अपना नाम बताते, और जब कहते हैं मम्मा तुम्हारे साथ और कौन है, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, नीचे अब्द बंदा एकदम कॉमन, इस अंदाज में समझिए। फिर आगे मोहम्मद, ये भी कॉमन, क्योंकि समझिए ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये भी कॉमन।
اور جب میں کامن بول رہا ہوں تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کامن صفت میں اللہ لا مکان تک لے جائے تو نبی اور رسول میں کہاں تک؟ یہی مفہوم ہے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، ہر ایک کوئی حد ہے ان کے عروج کی. ہاں یہ سوالیہ نشان ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ نہیں حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ بلندی کو پہنچے ہیں. وہ بلندی کیا ہے وہ خدا جانے. سمجھیے آپ اس بات کو، عبد کے ساتھ، اور عبد آپ بھی عبداللہ ہے کہ نہیں، بندہ ہے کہ نہیں آپ، تو عبدیت میں ایک دم مشترک صفت ہے یہ، اور مشترک صفت میں محیر العقول وجود ہو رہا ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والا وجود ہو رہا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی عبدیت کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ، اسرا بنبی ہی، اسرا برسول ہی، اسرا بحبیب ہی نہیں فرمایا، عبد کے ساتھ جو کامن ہے. ابھی اس سے اوپر تو صالحیت کی صفت ہے، اس سے اوپر شہید کی صفت ہے، اس سے اوپر صدیق کی صفت ہے، اس سے اوپر نبوت کی صفت ہے، اس سے اوپر رسالت کی صفت ہے، اس سے اوپر اولو العزم رسول کی صفت ہے، اس کے اوپر محمد رسول اللہ کی صفت ہے. آپ سمجھیے، عقل حیران ہو رہی کہ نہیں آپ کی؟ عبد کی صفت. اور اس کے بعد مما کا کون ہے تمہارے ساتھ؟ آسمان اول سے آواز آئی، کہا محمد ہے. کہا بلایا گیا ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں ہاں ذرا یہاں تک سمجھیے گا، ذرا آپ دنیاوی تعلیم اور سینس اور تھاٹ رکھے ہیں تو لگتا ہے کہ نبی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یا ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے، کس کو بھی معلوم ہی نہیں ہے. یہ سب باتیں آ رہی ہیں کیونکہ پوچھا جا رہا ہے نا. یاد رکھنا ہر پوچھ گچھ جو ہے لا علمی سے نہیں، کچھ عظمتوں کا باب بھی ہوتا ہے. قرآن سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیے اللہ پاک فرماتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ سوال تو ہے نا. اچھا حضرت موسیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تجھے تو معلوم ہے، بلکہ کہا قال ہی عصائے، میری لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، میں اس سے یہ کرتا ہوں. یہ ہے سوال صرف لا علمی کی بنیاد پر نہیں، کچھ مقصد کی تکمیل کے لیے بھی ہے. ذرا یہاں پر یہ ساری باتیں اس لیے پیش ہو رہی ہے کہ سب کی حد ابھی معلوم ہو جائے. کوئی ہے ہاں محمد ہے، اچھا بلایا گیا، ہاں دروازہ کھولا گیا. جب نبی تشریف لے گئے تو آپ ذرا سنیے، آپ ہم سب کتابیں لے کر کے وہاں دل کا نذرانہ پیش کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. ابو البشر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مرحبا بالنبی، مرحبا بالولد الصالح، نبی صالح مرحبا، ویلکم بیٹے، ویلکم نبی. کون؟ ابو البشر. آپ تو کامن بشر ہو، بشر کی اصل وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم، اور ان کا ویلکم کر رہے ہیں پہلے آسمان پر. ہو گیا ویلکم. اب بس اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر جانے کی تیاری، ٹھیک ہے چلے گئے. پھر ویسے ہی کھٹکھٹایا، دوسرے آسمان کو کھولا، وہی آواز کے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے. ساری باتیں جیسے ہی آپ تشریف لے گئے تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہاں ویلکم کیا. مرحبا کا لفظ ہے، عربی لفظ ہے، لیکن انگلش میں اس کا ویلکم یعنی تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. آج ایک وقت ہم لوگ کھڑے ہوتے تو آپ لوگ باہر جا کے فتوا لگاتے کہ کھڑے ہو کے کہاں ہیں، فتوے لگائیے. آپ مت کرو ایسا، سارا پول کھل جائے گا قبر میں. اپن تو باندھ کر کے آپ کو لٹاتے، وہاں آٹومیٹک کھل جاتے. آپ ذرا سمجھیے اس بات کو. کس خدا نے کہا تھا کہ نبی کا ویلکم کرو؟ کس خدا نے کہا تھا؟ تعظیم کے لیے ہی دل دیا گیا. ذرا سمجھیے آپ. حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے. اسی طرح ہوا. حضرت ادریس یا حضرت یونس علیہ السلام ویلکم کے، چوتھے آسمان پر گئے. یوسف علیہ السلام ویلکم کیے، پانچویں آسمان پر گئے. ہارون علیہ السلام ویلکم کیے، چھٹے آسمان پر گئے. موسیٰ علیہ السلام ویلکم کیے، ساتویں آسمان پر گئے. شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم جد الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کہتے ہیں مرحبا بابن صالح، اے فرزند صالح ویلکم. آؤ آؤ. بیت المعمور میں فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نبی آئے تو کھڑے ہو گئے. آپ سمجھیے ان باتوں کو. ساتویں آسمان پر گئے، ہاں
अब तक तो ये नबी को क्या भी नहीं मानते, इसलिए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हुए जा रहे हैं ना, यही समझ में आ रहा था आप सबको, हम सबको। लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते ही जा रहे, जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो हजरत जिब्रील रुक गए। अब यहां से सारी बातों को टेली कीजिए। यहां से तो मालूम हो रहा था कि नबी को कुछ नहीं मालूम, जिब्रील को सब कुछ मालूम, इसलिए जिब्रील और अंदर के फरिश्ते बातें हो रही, नबी हैं। लेकिन वहां जाकर के जिब्रील सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा जिब्रील रुक गए जाकर के। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी हद यहीं तक है। कोई हद है इनके उरूज की? अब समझिए, मेरी हद यहीं तक है। अच्छा, तेरी हद यहीं तक है, समझा दिया ना आपको नबी ने इशारे इशारे में, फिर समझा रहे हैं मजीद कि खबरदार जिब्रील जो ये पूछ रहे हैं ना, तो ये मत समझना कि मुझे नहीं मालूम है, ये मौक़े शरफ है, ये मौक़े शरफ है, जरा समझिए, हुसूल शरफ है। चुनांचे हजरत जिब्रील से नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अलक हाजतुन। सारा पोल खुल गया अब यहां से लेकर के सिदरतुल मुंतहा तक। बल्कि पहले ही इब्तिदाई में कह दो, जिब्रील की असमतों की जहां इंतहा है, मुस्तफा जाने रहमत के कदमे पाक की इब्तिदा है। लबे जिब्रील जो बोसा दिया है वो चेहरे मुस्तफा को नहीं, कदमे मुस्तफा को, कदमे मुस्तफा को दिया है, जरा समझिए। और इसी को कहा गया है, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके ईमान की बात हो रही है, खूब खुश हो जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जरा सोचिए, हजरत जिब्रील को नबी का क्या लगा हाजत, मेरे दादा से पूछे थे ना तुमने, इब्राहिम कोई जरूरत है? अब मैं वो कर्ज उतार रहा हूं आज सुबह, हाँ कर्ज उतार रहा हूं। नेक औलाद बनिए, लेटेस्ट औलाद मत बनिए, नेक औलाद बनिए। चाबी लीजिए लेकिन कर्जा फेड़ने के लिए लीजिए, अगर कहीं वसीयत किए हैं तो उसको उतारने के लिए लीजिए। हमारे को नहीं मालूम, कोई तो भी आया अगर आपके बाप का कि कर्जा है, हमारे को नहीं मालूम, कौन तो लिए होंगे, ऐसा मत। विरासत की तकसीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के मरने वाले का कर्जा ना आप उतार दें, कि शरीयत है। तो हजरत नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कह करके कर्जा उतार दिया। तुमने मेरे खलील से पूछा था ना, मैं उन्हीं का हूं, जरा समझिए। हाँ वो मेरे जद हैं, कुछ जरूरत, मगर उन्होंने तो कहा, उन्होंने तो तेरी जरूरत को नहीं मांगा था, तुम्हें कोई जरूरत है? जिब्राइल ने कहा हाँ। अब जरा समझिए, यहां कहा है हाँ और वहां कह रहे हैं नहीं। वो खलीलुल्लाह हैं और यहां हबीबुल्लाह है, और ये हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका है। पूछते हैं कि हाँ मेरी जरूरत है। कहा क्या जरूरत है? कहा जरा सुनिए। अब हजरत कंजुल उम्माल जो इतनी मोटी किताब है अरबी में, बार बार कह रहा हूं, नहीं हदीस मालूम हो, नहीं शरीयत मालूम हो तो अहले इल्म से पूछो। हर जगह कुरान पाक में आपको कहा गया है, बाखबर किया गया है, ला इल्मी को इल्म का नाम न दो कि हमने नहीं सुना है, इतनी उम्र हो गई। नहीं नहीं, नॉलेज का ताल्लुक उम्र से नहीं है, नॉलेज का ताल्लुक पढ़ने से है, कुरान के जुड़ने से है, शरीयत के जुड़ने से है। करीब कुरान से आप करीब नहीं होंगे तो आपकी उम्र तो चली जाएगी, नॉलेज नहीं आएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिए। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो अल्लाह पाक के नबी ने अर्ज किया हाँ, मगर उससे पहले एक जुमला कह रहा हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 600 बाजू अता किए। कितने? 600 पर समझ रहे ना, फरिश्ते हैं। एक बाजू की हैसियत है मा बैनल मशरिकैन वल मगरिबैन, चार जानिब को, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सबको एक ढक दे, हाँ एक ढांप दे, यानी 100 जने एक बाजू में आ जाए, उनके एक बाजू को अगर फैलाया जाए तो 599 बाजू बाकी है। अब जो लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हो या रसूलल्लाह दामन में छुपा लीजिएगा, कितने बड़े दामन है, बड़े तंग नजर हो, बड़े तंग नजर हो, उम्मत मोहम्मदिया हो, कुछ तो ख्याल करो। आप उम्मत नहीं हो सकते, अगर नबी की उम्मत हो तो जरा ख्याल करो।
जिब्राइल के एक बाजू की ये वुसअत है कि आसमानों मतलब पूरे चार जानिब को वो ढांक ले और हजारों जिब्राइल उलझे हुए। आप समझ रहे हो? तुम दामने मुस्तफा के गज को देख रहे हो, तौहीद की वुसअत को नहीं देख रहे हो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की वुसअत को नहीं देख रहे हो। तुम अपनी माथे की आंख से लॉजिक पेश कर रहे हो, अक्लें पैदल कर दो और कहो ये दामने मुस्तफा वो है कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इतनी वुसअत है। और क्यों ना वुसअत हो कि जब आपकी बारगाह के खोशाची जिब्राइल की ये वुसअत है। सुनिए, हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जा रहे हैं, जाइए अल्लाह से एक गुजारिश पेश कीजिएगा कि जब पुल सिरात पर आपकी उम्मत थोड़ी देर में चुप हो, सब लोग अपने आप को महसूस कीजिए कि क्या मैं हूं या नहीं, आप हम हैं कि नहीं उम्मत। और जिब्राइल क्या कह रहे हैं? आपकी उम्मत पुल सिरात पर जब चलेगी, ये चलना तय है, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को उस पर से गुजरना है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। तो आपकी उम्मत जब उस पुल सिरात से चलेगी और ये हक है, तो इतनी सी इजाजत ले लीजिए रब से कि मैं पुल सिरात के नीचे आपकी उम्मत के लिए पर बिछा दूं। अब हमें वुसअत को, हम तो एक को ये देख रहे हैं, अब जितनी भी उम्मत होगी, ये तलब गैर मुमकिन अगर होता तो मुस्तफा जाने रहमत रोक देते, लेकिन नहीं रोका। कहा तेरी जरूर ये गुजारिश पेश करूंगा, मंजर खेचा बरेली के ताजदार में, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, पर को खबर न हो, क्योंकि एक पर इतना बड़ा है तो वो सब बिछा देंगे, तो किससे आप गुजर जाओगे उनको खुद पता नहीं चलेगा। इतनी वुसअत है, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ये मांग पूरी हो गई, उतार दिया ना कर्जा, अब उसके बाद चले गए। अब जो गए बुराक भी यही, जन्नत की चीज भी यही, जन्नत की चीज भी यही। जन्नत नबी बांटते हैं, जन्नत नबी जाने के लिए नहीं ले जाने के लिए आते हैं। जरा समझिए आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद का जो मामला है, अब ये बीच के जितने भी हद के बाद, उसके बाद की सवारी है रफ रफ, और उनका सवार है बस खुदा। रफ 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 रफे खुजरी, कुरान पाक सूरे रहमान में इसका जिक्र है। अब वहां से चले गए, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं वो रिवायत के हवाले से भी तौज़ीह कर दूं कि आप जूता पहनकर आइए, आपके लिए जूता पहन करके, वो जूता वगैरह का मसला नहीं है, नबी पाक की मेराज का मसला है। आप वो बातें पेश कीजिए जिसकी असल मौजूद हो। और जब कुरान और हदीस इस मेराज की अजमतों पर नातिक है, तो आप कोई ऐसी बात ना कीजिए जो कि आपको खुद ठीक ना लगे। आप जरा समझिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे टच हो जाए वो अजमत वाली चीज हो जाए। जरा गौर कीजिए, ले जाने का राज भी यही है कि जमीनी हकीकत, जमीनी तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा, देखिएगा, सारे कमालात के असर रुनुमा हो चुके हैं और सारी चीजों ने आपसे कुंजो बरकत हासिल कर लिए हैं। ए मेरे हबीब, मलाए आला को भी अपने कदमे लुज़ूमे मैमनत से सरफराज कर दो। ये राज है ऊपर जाने का, ध्यान दीजिएगा, ये राज है। लेकिन जहां तक जिब्राइल, यहां तक तो मलाए आला की एकदम मैं हाँ तू हो ये सब की बात थी, खल्क की बात थी। अब सिर्फ खालिक और नबी की बात है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर बड़े लतीफ बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इसको आप लामकान कह रहे हैं। सवाल आसान सा कर रहा हूं मैं, लामकान में जाकर क्या करना चाहा है अल्लाह तबारक व तआला ने। पहले सूरह काफ की आयत करीमा पढ़ रहा हूं ताकि करीब हो जाए आप। सूरह काफ में है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसानों की शह रग से ज्यादा करीब हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा हम इंसानों की
शहरक से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह जब करीब है ही तो हबीब को वहां क्यों बुलाया? जब कुर्बत हासिल है ही, कुर्बत है ही तो किस लिए बुलाया? तो ये देखिए, ये कुर्बत आम्मा है, वो कुर्बत खासा है जिसको कुरान सूरह नज्म की आयत नंबर 17-18 में कहता है, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, दना फतदल्ला, इतना करीब हुआ कि अब इतना भी नहीं बोलो, कितना करीब हुआ वही रब जाने। रब ने तो ऐलान कर दिया था कि हम सबसे करीब है, तो कुर्बत खुदा तो सबको है, ये कॉमन है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत खासा के लिए लामका को बुलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, लामका को बुलाया गया है। और अब जरा सवाल ये होता है, लामका तो कहते हैं जो मकान न, कोई जगह ना हो, तो सवाल ये है कि क्या राज है इसके अंदर, क्यों बुलाया अल्लाह ताला ने लामका में? तो एक उसका आसान सा जवाब जो आपको मजा देगा कि अगर मक्का में बुलाया जाता तो मक्का नाज करता, मदीना में बुलाया जाता मदीना नाज करता, किसी जगह को भी चॉइस किया जाता वो नाज करता। कोई जगह नहीं कि मेरे पास आए मैं तू की बात हो, लामका आ जाओ मेरे हबीब, शान मुनफरिद बन जाए, शान मुनफरिद बन जाए। कोई ये ना कह सके मेरे पास आए मेरे पास आए मेरे पास आए मेरे पास आए, नहीं। इसीलिए एक हदीस पाक में है जिसको इमाम अहले सुन्नत ने भी शेर में नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आसमान की जो जुगराफियाई शक्ल थी वो ये थी, कटोरे वाली शक्ल, इस तरह की शक्ल थी। अब जरा समझिए, इस तरह की शक्ल थी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इस तरह की शक्ल हो गई। ये हदीस पाक है। अब जाहिर इमाम अहले सुन्नत जब पेश कर रहे हैं तो वही तो नहीं है, फरमाते हैं खम हो गई पुश्ते फलक, खम माने टेढ़ी, पुश्ते फलक आसमान की पीठ, तो इसका मतलब पीठ ये थी। खम हो गई पुश्ते फलक, इस ताने जमीन पर जब नबी तशरीफ लाए तो जमीन ने ताना दिया, तुम तो बहुत ऊपर हो ना, लेकिन तुम में कहां रहे नबी, क्या बात है, तुम में कहां रहे नबी, मेरे में आ गए। तो खम हो गई, अल्लाह पाक को आसमान ने कहा मौला ये ताना बर्दाश्त नहीं, मुझे टेढ़ा कर दे, मुझे टेढ़ा कर दे। खम हो गई पुश्ते फलक, इस ताने जमीन पर सुन हम में मदीना है वो रुतबा है हमारा, हमारे सुन हम में मदीना है वो रुतबा है हमारा। अब समझिए, इसलिए अल्लाह पाक ने अपने हबीब को लामका का सैर कराया, लामका में बुलाया ताकि कोई मकान एक दूसरे को ताना न दे। ये सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए हैं, ये सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए हैं, चाहे अक्ल की मखलूक हो गैर अक्ल की मखलूक हो, सबके लिए रहमत बन करके आए हैं, तान का उन्वान नहीं है। अब जब ले गए तो इतनी जो बात हमने की है ना कोई नहीं करते, करने के बाद हाँ अभी जैसे एक सवाल हुआ, ये तो ऑनलाइन सवाल किया आने से पहले तो मैं देखा तो बेटी बोली परी साहब का फोन होगा तो मैंने कहा नहीं इनका नहीं है किसी और का। उन्होंने कहा कहां है, मैंने कहा वही है जो अत्तहियात में आप पढ़ते। अब क्या जवाब देना हमें, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ते कि नहीं पढ़ते, पढ़ते कि नहीं, सब पढ़ते ना भाई। और उनको भी यही जवाब दिया मैंने, ये मेराज ही की बात है। अब अगर मेराज को नहीं मानते तो इनको मत पढ़ो, ये तो मैं ऐसे ही कहा। फिर कहा कि ये अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो मेराज को मानो, नमाज पढ़ते हैं तो मेराज को मानो, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर इनकार करो। सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाली ही लोग इनकार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नमाज नमाज नमाज। आप जरा सुनिए, आपको डायरेक्ट नहीं दिया अल्लाह ताला ने नमाज, आपके लिए तो अल्लाह ताला ने 50 वक्त रखा था डायरेक्ट। करम तो देखिए, अल्लाह पाक ने आपके नबी को दिया है नमाज, ज़कात दिया जिब्रील के वास्ते से, हज दिया जिब्रील के वास्ते से। समझिए आप, दिगल पिलल्स ऑफ इस्लाम जितने भी है ना वो सब जिब्रील के वास्ते से, लेकिन नमाज बुला कर दिया है,
फलसफा समझिए। आज सबसे ज्यादा नमाज 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 नमाज। आज आप देखें जाकर के बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो सुनसान नजर आ रही होगी। मुसलमानों, इससे पहले कि तुम्हारी मस्जिदें बुलडोज कर दी जाए, आवाज करो ऐसी। इन आवाजों की वजह से सारे बुलडोजर जितने भी हैं वो खुद खामोश हो जाएंगे। नहीं, ये मस्जिदें आबाद हैं, इन्हें बुलडोज नहीं किया जा सकता। मौका भी मिले आपको जमा होने का, तब भी आप इस तरह कर रहे हो। जितनी भी मस्जिदें बुलडोज की गई हैं, पूरी तहकीक कर लो कि कहीं भी उन मस्जिदों में या तो नमाज नहीं होती थी या तो कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। अल्लाह ताला हमारी सारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। एतराज मत करो, समझो इन बातों को। नमाज पढ़ते हो तो ये आपको नहीं दिया, अल्लाह ताला ने मुस्तफा को पहले दिया है, और वो भी इसलिए नहीं कि उम्मती को दे देना, नबी की ख्वाहिश पर अल्लाह ने दिया, ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने दिया है। पहले आसमान पर जितने भी लेकर के 7वें आसमान तक, किसी को देखा रुकू में, किसी को देखा सजदे में, किसी को देखा क़याम में, पूछते चले गए क्यों है? हाँ, ये इसकी हालत है। कोई क़याम में, ये जिंदगी भर तक नमाज इसी तरह इबादत करेंगे, कोई रुकू में इसी तरह। अल्लाह पाक के नबी ने ख्वाहिश की कि ये सारी हयातें मलकूतियत, क्या बात है, फरिश्तों की जो ये हयात है मुझे बहुत पसंद है मेरी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, ये उम्मत के लिए इस ख्वाहिश का तौहीदी एहतराम ये है कि मेरे हबीब, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी उम्मत का तोहफा नमाज है। सुभान अल्लाह, आप समझ रहे हो, आपकी उम्मत का तोहफा नमाज है। चुनांचे जब दिया तो देने के बाद छठे आसमान पे कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम थे। गैरुल्लाह की मदद के हवाले से नजरिया रखने वाले नबी और वली ही समझते हैं। गैरुल्लाह बोले तो नबी और वली बोलते हो, समझते, सही है। हम तो गैरुल्लाह, नबी और वली को नहीं, नबीउल्लाह को नबीउल्लाह कहते हैं, वलीउल्लाह को वलीउल्लाह कहते हैं। कुरान में और हदीस में कहीं भी नबी को गैर नहीं कहा गया, वली को गैर नहीं कहा गया। लेकिन जो लोग एतराज करते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क या हराम है, वो नबी मुराद लेते हैं या वली मुराद लेते हैं। अब जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला के नबी 50 वक्त की नमाज लेकर तशरीफ लाए, छठे आसमान से गुजरने, जैसे नीचे आए, 3-4 मिनट है, रुकिए, जैसे अभी नीचे आए, जा रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम पूछ पड़े, आ गया जी आ गए, हाँ, क्या मिला? क्या बात है, क्या मिला? कैसा निजाम अजमत मुस्तफा देखिए आप, सुभान, निजाम अजमत मुस्तफा देखिए। अल्लाह पाक की तरफ से 50 वक्त की नमाज मिली। 50 वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत तजर्बा कर चुका हूं, आप जाइए, कम कराइए। अच्छा, यहां पर भी लग रहा है कि नहीं कि नबी को नहीं मालूम, मोहम्मद को नहीं मालूम। मगर ये जुमला बोलने से पहले खुदा के बारे में सोच लेना। खुदा को तो मालूम है ना कि उम्मत पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, कि मूसा को ज्यादा मालूम है। नजरिया समझिए। अल्लाह पाक के हबीब ने कहा ठीक है जाता हूं, गोया नबी भी समझ रहे हैं और खुदा भी जान रहा है। 5-5 करके 9 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के पास हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। 45 वक्त की नमाज कम किए, आवाज आई अब नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अरे मूसा अलैहिस्सलाम 5 वक्त को भी कम करवा रहे थे। क्या मोहब्बत थी मूसा को, आपसे कमाल है, क्या मोहब्बत थी, पूरे कम करा था। और सही भी देख रहे हैं ना, अभी इतने हैं ना, फजर में देखिए एक शब्द नहीं होती, बराबर तजर्बा करे थे। हाँ, बराबर तजर्बा करे थे। अल्लाह ताला हमारी मस्जिद को आबाद फरमाए। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, लेकिन एक नुक्ता दे रहा हूं, अल्लाह तबारक ताला के नबी ने कहा इस्तहयाई, तो मुझे शर्म आ रही है, इसमें भी कैसा कम कराते थे, जरा इसमें कैसा कम कराते। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज दिया, जाओ मेरे हबीब, पढ़ेंगे 5 सवाब मिलेगा 50 का, पढ़ेंगे 5 सवाब मिलेगा 50 का। लेकिन इनमें कितने क्या क्या नुक्ते हैं वो सब समझते चले जाइए। एक लफ्ज में मूसा अपनी उस शान को बताना चाह रहे थे जो आज लोग आप करते हैं ना, इस किताब में है, उस किताब में है। इस मंजर से समझिए और सूरतुल अनआम या सूरतुल आराफ की उस आयत से समझिए कि जब मूसा ने कहा था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब ने कहा तू नहीं देख सकता, ये साथ देखने के लिए कोई और है, लेकिन एक समा लाऊंगा, तेरी भी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, क्योंकि
अर्ज की है, मगर मुमकिन कैसे है वो वास्ता के तौर पर। सुनो, एक आंख है जिस आंख को निगाह मुस्तफा कहा जाता है, वो आंख की शान यह है कि माज़ागल बसर व मा तगा। उस आंख की कुदरत और शान यह है कि वो जब मुझे जात को देखेगी तो न इधर होगी न उधर होगी। बेहोशी की तो बात ही छोड़ो, लेकिन मूसा तुम उनकी आंख में 9 बार देखना, ये फलसफा था। वरना अल्लाह खूब जानता है कि आपको कितना नमाज देना, जानता है कि नहीं। इसलिए नबी से रिलेटेड चीज पर सवाल करने से पहले खुदा से अगर वो निस्बत रखने वाली चीज है तो समझ लेना पहले खुदा पर भी एतराज होगा कि अल्लाह को भी तो मालूम था कि 5 वक्त की ही उम्मत नमाज पढ़ सकती है। बहरहाल आज की अजीमुशान रात आपको हम सबको जो मुयस्सर आई है, यह सिर्फ इंतखाब मुस्तफा है। ये नबी ने आपको चॉइस किया है उस रात को कि अल्लाह मैं इस अजीम मौके से कैसे भूल सकता हूं अपनी उम्मत को। उस नबी ने आपको याद किया है, हमने थोड़े देर सही उस नबी को याद करके कम से कम याद करने वालों में अपनी शिरकत को यकीनी बना दिए हैं। आइए दुआ करें अल्लाह के नबी, हम वफादार हैं, आप हम बेवफा नहीं है मौत, हम बागी नहीं है, हम गुस्ताख नहीं है, हम बेअमल हो सकते हैं लेकिन आपके गुस्ताख नहीं हो सकते। जब भी मौका आएगा हम आपके जिक्र के लिए महफिल सजाएंगे, तौफीक खुदा देगा। ए अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, हम सबकी तमाम आरज़ुओं को तमन्नाओं को पूरी फरमा, घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमा और रोजे जिंदगी नसीब फरमा, रानाइयां नसीब फरमा। हम सबको जाहिरी बातनी तकलीफ परेशानी हम सब दूर फरमा दे। जो बीमार है शिफा दे दे, जो हमारे कर्ज में मुब्तला है सबूदोश कर दे, जो जाहिरी बातनी तौर पर आसे ज़दा है सहर ज़दा है, मौला सब को दूर फरमा दे। वालिदैन को इज्जत अता फरमा, औलाद को बाअदब कर दे। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।